जी हमने पीछे किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे एंड 3 फॉर्मूले टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन. 1 mass by mass percentage, mass by volume percentage, and volume by volume percentage. Now the solutions, they can be classified into 2 classes on the basis of their concentration even: saturated solution and unsaturated solution. So on basis of concentration, the solution can be classified into 2. One is saturated solution and another is unsaturated solution. Now what is saturated solution? देखिए, if we take some water and add a spoonful of sugar in it, it will dissolve. Then we can add more, that may also dissolve, and keep on dissolving. आप dissolve करते रहिए. A situation will arise, no more solute will be dissolved at a particular temperature. कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज़्यादा शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी और सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा. दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. A solution in which no more solute can be dissolved, कि जिसमें और ज़्यादा solute dissolve नहीं हो सकता at a given temperature or at a particular temperature, that is known as saturated solution. For example, at 30 degrees Celsius, 55 gram of common salt can be dissolved into 100 gram of water. In 100 gram of water at 30 degrees Celsius, 55 gram of common salt can be dissolved, and no more solute can be dissolved at 30 degrees Celsius. So that is saturated solution. वो उसका saturated हो जाएगा. If we heat any solution, then more solute can be dissolved. और जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो क्या होता है? मतलब कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता एट ए गिवन टेम्परेचर, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा. जस्ट लाइक एग्जांपल दे दिया आपको कि 100 ग्राम वाटर के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस पे 55 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता है, तो वो सैचुरेटेड, और ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा. बट इफ़ वी हीट द सॉल्यूशन, देन मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड, और जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसका मतलब हीट करने पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है. सिंस इफ वी हीट, देन more solute can be dissolved, or in other words we can say a saturated solution convert into unsaturated solution. On heating, more solute can be dissolved, means solubility of that substance increases, कि उस substance की solubility क्या हो जाती है? increase हो जाती है. हमने क्या पढ़ा है अभी तक? वी स्टडीड सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो 2 क्लास में आप क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन.
One is saturated solution, another is unsaturated solution. Saturated solution is that solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature. If we heat the saturated solution, then what happens? Then saturated solution convert into unsaturated solution, or in other words we can say solubility of the solution increases. More solute can be dissolved. Next is unsaturated solution, that solution in which more solute can be dissolved at a given temperature, जिसमें और ज़्यादा solute dissolve कर सकते हैं, that is unsaturated solution. For example, सेम बात, वही एग्जांपल लें आप कि आपने अगर 100 ग्राम वाटर लिया और 30 डिग्री सेल्सियस पे उसमें 30 या 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, देन इट इज़ अनसैचुरेटेड बिकॉज मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. 55 ग्राम तक डिजोल्व हो सकता है. तो अब आपने अगर 55 से लेस रखा है तो उसमें और सोल्यूट डिजोल्व हो जाएगा. दैट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड. वन मोर, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution which consists of solute more than even saturated solution. Saturated से भी ज़्यादा solute जिसमें प्रेजेंट हो, दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड. अब आप कहेंगे कि जो मैक्सिमम डिजोल्व होता है उसको तो हम सैचुरेटेड बोलते हैं. फिर हाउ कैन वी प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड? आप पहले उसको थोड़ा सा हीट कर लीजिए, और ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगा, फिर उसको कूल कर दो, उसमें ज़्यादा सोल्यूट रहेगा. That is super saturated solution, a solution which consists of more solute as compared to the saturated. जिसमें saturated से भी ज़्यादा solute हो उसको हम क्या बोलते हैं? super saturated solution. Next is solubility. अब ये solubility क्या चीज़ होती है? आप पहले समझिए इसको, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे. 100 ग्राम सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है वो उसकी सोल्यूबिलिटी है. कंडीशन है सॉल्वेंट कितना होना चाहिए? 100 ग्राम. टेम्परेचर कौन सा? रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसको अप्रोक्सीमेट 22 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं. तो रूम टेम्परेचर पे, या आप ये कहिए गिवन टेम्परेचर भी कह सकते हैं. जनरली रूम टेम्परेचर लेते हैं. गिवन टेम्परेचर कौन सा होता है? रूम टेम्परेचर. मतलब ना हीट करना ना कूल करना, दिस टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर. कि रूम टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस के अंदर हम जितना डिजोल्व करते हैं, मतलब मैक्सिमम जो डिजोल्व हो सकता है वो क्या है? सोल्यूबिलिटी. व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी? The maximum amount of solute which can be dissolved into 100 gram of solvent. 100 gram solvent में जितना maximum solute can be dissolved at room temperature or at a given temperature, that is known as its solubility. रूम टेम्परेचर पे ही आप वर्ड यूज कीजिएगा. एट रूम टेम्परेचर 100 ग्राम सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट कितना जितना मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है वो उसकी क्या है? सोल्यूबिलिटी है. सो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और वी कैन से द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर is known as solubility. Solubility of some substances at room temperature means approximately at 20 degrees Celsius it is given. कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर 21 ग्राम डिजोल्व हो सकता है.
पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड नमक 34 ग्राम। हमने अभी जो पढ़ा था वो 30 डिग्री सेल्सियस पे 55 था, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम, शुगर 204 ग्राम। शुगर is more soluble as compared to the common salt. This is solubility. आप एटलीस्ट कॉमन सॉल्ट एंड कॉमन शुगर इन दो की सोल्यूबिलिटी जरूर लर्न कर लीजिए, बिकॉज दीज आर कॉमन सब्सटेंसेज। कॉमन सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी एट रूम टेम्परेचर मीन्स एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है? 36 ग्राम। एंड शुगर कितनी होती है? 204 ग्राम। इसलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो आप कॉमन सॉल्ट से कीजिए, थोड़े से में काम चल जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। अभी हमने बात की थी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा डिजोल्व हो सकता है। तो हमने यही बात यहाँ पे स्टडी करनी है कि आप जो है कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्वेंट लीजिए, जस्ट लाइक वाटर ले लिया, उसमें हम शुगर या कॉमन सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हैं, से डिजोल्व करते रहिए आप। अ सिचुएशन विल अकर नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, कि और ज़्यादा उसमें सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। देन फिल्टर इट, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कैसा बन जाएगा? सैचुरेटेड। बट इफ़ वी हीट दैट, उसको हीट कर दें, देन मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व। So we can say on increasing temperature solubility of substance increases. But what happen if we decrease the temperature? Solubility will decrease. आप देख लीजिए, जो कोल्ड वाटर में, चिल्ड वाटर के अंदर आप शुगर डिजोल्व करना स्टार्ट करें, डिजोल्व ही नहीं होती इजीली, बिकॉज टेम्परेचर इज लो एंड सोल्यूबिलिटी इज वेरी लेस. So on increasing temperature, solubility increases. तो जितनी किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व करने के लिए, इसका मतलब है कि हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और जिनमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं उनको हम? एंडोथर्मिक. सो डिजोल्व करना किसी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो कोई भी प्रोसेस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं, और कोई प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक. आपने क्विकलाइम देखा है, चूना वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, क्या होगा? हीट इवॉल्व होगी, गर्म हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. कॉमन शुगर को वाटर में डिजोल्व कीजिए, क्या होगा? कूल हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा. कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो आपने दो डेफिनेशन अपनी नॉलेज के लिए वैसे भी ध्यान रखनी है. व्हाट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक. एंड द प्रोसेस इन विच हीट इज इवॉल्व, बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सोल्यूबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व करना, दीज आर जनरली एंडोथर्मिक प्रोसेस. हीट एब्जॉर्ब होती है. तो कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या कोई भी सोल्यूबिलिटी हो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? आपको बताया है कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड. हाँ जी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो तो कि उसमें से हीट पहले ही बाहर निकल रही है और आपने उसको और हीट कर दिया, तो उसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है.
जनरली किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक होती है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट सम आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बहुत कम ऐसी भी हैं कि सोल्यूबिलिटी में भी एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट बाहर निकलती है। अगर उसको हीट कर दें तो क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। जैसे कूल करने पे, एंडोथर्मिक में कूल करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, इसी तरह एक्सोथर्मिक में हीट करने पे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? सिंपल बात है, अभी अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर देंगे तो उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब वो क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड। तो देयर आर टू बेसिक मेथड्स टू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड। One common method, heat the solution. On heating, more solute can be dissolved और solute dissolve हो सकता है, so it become unsaturated. Another, if more solvent is added, then also the solution become unsaturated. मान लिया आपने वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व की और मैक्सिमम डिसॉल्व कर दी और डिसॉल्व नहीं हो रही है, और अगर आपने उसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया तो और भी ज़्यादा शुगर उसमें डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो क्या बन जाती है? मतलब अनसैचुरेटेड प्रोसेस हो जाती है। सैचुरेटेड से वो क्या बन जाती है? अनसैचुरेटेड हो जाती है। अगर आप किसी सब्सटेंस को हीट कर देते हैं, किसी सॉल्यूशन को हीट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है। सेकेंडली, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं तो भी वो क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड हो जाता है। सिंस देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू अनसैचुरेटेड, वन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड अनदर बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट। और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, हमने सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइड्स की बात की थी, आपको ध्यान होगा। अब आप देखिए, ट्रू सॉल्यूशन कौन से थे? जिसके अंदर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, and if size of solute particle is between 1 nanometer to 100 nanometer, तो उसको बोलते हैं colloids और colloidal solution। और जिसमें size of solute particle is greater than 100 nanometer, उसको बोलते हैं suspension। We are doing here suspension. What is a suspension? Suspension is that heterogeneous mixture, बिकॉज उसमें बिल्कुल अलग अलग दिखता है पार्टिकल। एक ट्रू सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी सब क्या है? हेट्रोजीनियस है। या कंपाउंड मिक्सचर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। मिक्सचर में अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को छोड़ दें तो बाकी सब क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। प्योर सब्सटेंस में सारे होमोजीनियस होते हैं, बट मिक्सचर में सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है। वी आर स्टडिंग हियर सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब क्या है कि आपने वाटर के अंदर सैंड ऐड कर दिया, सस्पेंशन बन गया, बिकॉज बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, बिल्कुल अलग दिखता है, तो वो सस्पेंशन है। और सस्पेंशन में साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, एंड वी कैन सी द बाउंड्रीज इन सस्पेंशन विद नेक्ड आइज। देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, चौक पाउडर एंड वाटर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कंप्लीटली सोल्यूबल ना हो।
वो सारे क्या रहेंगे, सस्पेंशन, बिकॉज उनमें क्या रहेगी, बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे वो। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन? द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन आर, नंबर 1, they are heterogeneous because they have boundaries of separation. Size of solute particle is greater than 100 nanometer. These settle down on keeping. अगर आप इनको अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन में छोड़ दें तो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। Another is they scatter the light to very large extent. लाइट को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। solute particle, they can be seen easily with naked eyes. Do not pass through filter paper. फिल्टर पेपर में से पास नहीं करते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं सस्पेंशन की, और आपने बहुत अच्छी तरह से इनको स्टडी करना है। 1 इज हेट्रोजीनियस, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। आप 100 नैनोमीटर कहिए और चाहे 10⁻⁻7 मीटर कहिए, और 100 नैनोमीटर एक ही बात है। Particles are very large, so can be seen with naked eyes. Due to large particle, they scatter the light to very large extent. When it is kept undisturbed, the solute particle they settle down, नीचे बैठ जाते हैं। तो ये मेजर प्रॉपर्टी, they do not pass through filter paper. पार्टिकल साइज इज वेरी लार्ज, तो फिल्टर पेपर में से इनको आप ये पास नहीं करते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, मतलब हो जाते हैं। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं सस्पेंशन की। एंड द नेक्स्ट इज कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स। कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स क्या होते हैं? दे आर इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, बिकॉज साइज of the solute particle is between 1 nanometer, means 10⁻⁻7 centimeter to 100 नैनोमीटर, या आप इसको 10⁻⁻9 मीटर भी कह सकते हैं। मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर के बीच में। सेंटीमीटर में कहा है तो आप 10⁻⁻ से -5 कर सकते हैं, या आप 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर कह सकते हैं। इसके बीच में सोल्यूट का साइज रहता है। कोलोइडल सॉल्यूशन और कोलोइड्स, दे आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस बट अपीयर होमोजीनियस। दिखने में होमोजीनियस जैसे होते हैं, बट एक्चुअली दीज आर हेट्रोजीनियस, क्योंकि हमने होमोजीनियस किसको सपोज किया है? जिसका साइज 1 नैनोमीटर तक हो वही होते हैं होमोजीनियस, बाकी सब हेट्रोजीनियस। सो कोलोइड्स आर ऑल्सो हेट्रोजीनियस बट दीज अपीयर होमोजीनियस, लेकिन ये दिखते होमोजीनियस की तरह से। जिस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो हमने टर्म यूज की। सोल्यूट कौन सा? जिसको डिजोल्व किया। सॉल्वेंट कौन सा? जिसमें डिजोल्व किया। हियर ऑल्सो 2 टर्म्स आर देयर, वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जस्ट लाइक सोल्यूट, सोल्यूट की तरह से होता, आप ये मान के चलिए, और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब सॉल्वेंट की तरह से है। मतलब हमने यहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को क्या नेम दिया है? डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्यूशन को क्या नेम दिया है? डिस्पर्शन मीडियम। नेम चेंज हो गए, बाकी बात वही है। तो सिंस अ कोलोइडल सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन इज डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर इज डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या है?
that part of colloidal solution which is present in lesser amount, जिसकी अमाउंट कम होगी, that is dispersed phase, उसको हम dispersed phase बोलते हैं. And size of the dispersed phase, मतलब particle of dispersed phase, they are between 10 raised to power minus 9 meter to 10 raised to power minus 7 meter. आपको सारे समझाने के लिए अलग अलग जगह जो है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दे दिया, यहाँ पे मीटर में दे दिया, सेम थिंग, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसा किया गया है कि मीटर में करना हो तो ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, सेंटीमीटर में करना हो तो ऐसे करना है, नैनोमीटर में करना हो तो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में. सो size of the particle in dispersed phase is between 10 raised to power minus 9 meter to 10 raised to power minus 7 meter, or you may write between 1 nanometer to 100 nanometer, इसके बीच में. Dispersion medium, that component of colloidal solution in which dispersed phase or other particles they are present or dissolved. तो वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है और जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स या आप कहिए कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज दे आर प्रेजेंट. क्यों? कोलोइडल सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम. उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं. These are the some examples and very very important. इन एग्जाम्पल्स को, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है और कोलोइड्स हैं, आपने सब को लर्न करना है. नंबर 1 ये जो चीज़ है, और ये नंबर 2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम ऐसे ही गिवन है. ये examples. Solid into solid means types of colloids. हाँ, these are types of colloids. लेकिन यहाँ पे dispersion of fluid है, same है दोनों. कोलोइडल की टाइप इसके बीच में अंदर एंटर कर, मतलब एक यहाँ पे कट हो गया है एक, और सॉलिड इनटू सॉलिड आना चाहिए था. अच्छा, एक कट हो गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ. दिस इज यहाँ पे एग्जाम्पल है, दीज आर एग्जाम्पल्स. साइड में कहीं चला तो नहीं, या नहीं? These are examples of colloids. अच्छा, डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे है ही नहीं,
कोई नहीं, हम यूज़ कर लेते हैं। डिस्पर्स्ड फेज मीडियम एंड टाइप ऑफ कोलोइड, दीज आर टाइप ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो, मीडियम भी सॉलिड हो, देन इट इज नॉन एज सॉलिड सोल, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। एंड एग्जांपल क्या है, कलर्ड ग्लूज, जेम स्टोन। जेम स्टोन में जो है सॉलिड में सॉलिड होता है, डिफरेंट कलर है, तो दैट इज द सॉलिड सोल। पल्स हैं, एलोइज, मेटल, जस्ट लाइक ब्रास है। ब्रास में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर भी सॉलिड और जिंक भी क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड इनटू सॉलिड। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। अनदर इज लिक्विड इनटू लिक्विड, ये सोल है क्या, हाँ, फिर सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड इनटू लिक्विड मतलब लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व कर रखा है, तो उसको सोल बोलते हैं, कोलोइड का नेम। पेंट्स में, स्टार्च में, स्टार्च सॉल्यूशन में स्टार्च को डिसॉल्व किया हुआ होता है। प्रोटीन्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर रखा होता है, तो वो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड होता है, वाटर जो है लिक्विड होता है, दैट इज सोल। अब सॉलिड एरोसोल, सॉलिड इनटू गैस है ये, फिर ये सॉलिड एरोसोल है ना, तो ये क्या है, सॉलिड इनटू गैस, मतलब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और गैस में डिसॉल्व कर रखा है, तो सॉलिड सोल। स्मोक, आप स्मोक में देखिए क्या होता है, अनबर्न्ट सॉलिड पार्टिकल एयर के अंदर होते हैं, तो क्या हो गया, सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड इनटू सॉलिड का सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू गैस। अब जेल, जेल उल्टा होता है, सॉलिड में लिक्विड होता है, तो वो जेल, चीज, आप देखिए चीज सॉलिड होता है बट उसके अंदर वाटर फिल्ड होता है। आप एक एक एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा इसमें। इसको लिक्विड इनटू सॉलिड को जेल बोलते हैं। जैसे आप चीज का एग्जांपल ले सकते हैं, बटर का एग्जांपल ले सकते हैं। लिक्विड इनटू लिक्विड, एमल्सन बोलते हैं। हेयर क्रीम वगैरह, मेडिसिन्स बहुत सारी होती हैं इसी तरह एमल्सन में। मिल्क है, एमल्सन की तरह से वर्क करता है, बिकॉज मिल्क इज नॉट अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज कोलोइड्स। ये सारे कोलोइड के एग्जांपल हैं, बट डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स। लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड है ना, हाँ ठीक है, लिक्विड इनटू गैस है ये। लिक्विड एरोसोल, जो फ्यूम्स बनते हैं, मिस्ट बनते हैं, जिनके क्लाउड्स बनते हैं, फोग आती है, जैसे उस तरह का स्प्रे जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड एरोसोल बोलते हैं इनको। तो दैट इज एग्जांपल, आप मिस्ट का, फोग का एग्जांपल ले सकते हैं। सॉलिड फोम, फोम किसका बनता है, किसकी वजह से बनता है, फोम गैस की वजह से बनता है, तो दैट इज गैस इनटू सॉलिड, सॉलिड फोम। जो फोम होता है उसके अंदर आप देखिए गैस भरी होती है, तभी वो कंप्रेस हो जाता है। प्यूमिक स्टोन है, आइसक्रीम के अंदर भी ऐसा ही होता है, रबर में भी होता है, एयर फिल्ड होती है उसमें। और गैस इनटू लिक्विड, फ्रोथ्स, झाग जो बनते हैं, साबुन के झाग जैसे होते हैं, वो फ्रोथ्स, वो फ्रोथ जो है, सोडा वाटर का जो फ्रोथ्स होता है वो क्या है, गैस इनटू लिक्विड है। हम कोल्ड ड्रिंक वो करते हैं, वो क्या है, गैस इनटू लिक्विड है, तभी वो एकदम बॉयल होके बाहर आती है, मतलब उसकी गैस बाहर निकलती है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल हैं कोलोइड्स के। आपने एक एक दो इसमें से एग्जाम्पल भी करना है। आपको उसका डिस्पर्स्ड फेज पता होना चाहिए, डिस्पर्शन मीडियम पता होना चाहिए।
आपसे जनरली क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एमल्सन, नेम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो आपको बताना है डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, तो आप मिल्क का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे आपने बताया, जो टेबल में गिवन है इतना ही आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स। हमने अभी तक ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी की है। मैं 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी बताता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन की क्या की, होमोजीनियस है, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, डू नॉट स्कैटर द लाइट। सस्पेंशन में हमने क्या की, हेट्रोजीनियस, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, scatter the light to very large extent, settle down on keeping। कोलोइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं इन बिटवीन है दोनों की, हेट्रोजीनियस है बट अपीयर हेमोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस बट क्या है, बट अपीयर्स लाइक होमोजीनियस, होमोजीनियस की तरह से दिखता है हेट्रोजीनियस बट अपीयर्स लाइक होमोजीनियस। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। नेक्ड आइज से आप इसको नहीं देख सकते। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में साइज रहता है, एंड दिस कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग, रखने पे अलग नहीं होते। एंड मीन्स स्टेबल होते हैं। पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में से भी पास कर जाते हैं। दीज आर नीदर ट्रांसपेरेंट और नॉर ओपेक, these are translucent type, मतलब little amount of light pass through them। colloidal solution scatter the light to small extent, थोड़ा सा लाइट को स्कैटर करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर ही नहीं करते, पाथ विजिबल ही नहीं होगा उसका। आप ट्रू सॉल्यूशन में से लाइट पास करेंगे तो बीच में से लाइट नहीं दिखेगी आपको, जितनी बीम है एज इट इज पैरेलल मूव कर जाएगी। कोलोइड्स में से पास करेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर होगी। जैसे आपने किसी भी बंद कमरे में अगर किसी वन होल में से लाइट आ रही हो, सनलाइट आ रही हो, तो दैट अपीयर्स स्कैटरिंग, थोड़ी वाइड होती दिखेगी आपको, और उसमें बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल फ्लोट होते दिखते हैं। दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट है वो एक तरह का। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोलोइडल पार्टिकल से होती है। पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन से होती है। सस्पेंशन लाइट को बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं, कोलोइड्स लिटिल अमाउंट में स्कैटर करते हैं। इन कोलोइड्स द पार्टिकल्स विच आर इन मूवमेंट दे आर इन जिगजैग मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, आगे हम करेंगे। These are the common properties of colloids, ये colloids की common properties है। And the next is, इसमें वर्ड आया था ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, देखिए जो colloids होते हैं बेटा, उसमें colloid पार्टिकल, colloidal पार्टिकल जो है दे कीप ऑन मूविंग। सस्पेंशन में हैवी होते हैं, बहुत कम मूवमेंट होती है। मूवमेंट सभी में होती है, बट ये कोलोइड्स की मूवमेंट विजिबल है इजीली। इसमें क्या होता है, कोई पार्टिकल मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। सपोज इट स्टक टू अनदर पार्टिकल, किसी दूसरे पार्टिकल से स्टक हो जाता है, देन इन मूव इन अदर डायरेक्शन, स्ट्रेट मूव करेगा। फिर ये किसी अनदर पार्टिकल से फिर स्टक हो जाता है,
फिर ये किसी अनदर डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर यहाँ सपोज करो अनदर पार्टिकल से स्टक हो गया, हो सकता है इधर मूव कर जाए। फिर यहाँ फिर स्टक हो गया, हो सकता है ऐसे मूव कर जाए। लाइक दैट इट कीप ऑन मूविंग, मूवमेंट इसकी बनी रहती है। यूं हो सकता है यहाँ पे फिर स्टक कर गया, सपोज करो ये इधर आ जाएगा, यहाँ से फिर स्टक करके सपोज करो ये इधर चला जाएगा। मतलब लाइक दैट इट कीप ऑन मूविंग। दिस जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, देखिए पार्टिकल ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ध्यान रखिएगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बट जब वो स्ट्रक कर जाता है किसी से तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिर वो स्ट्रेट में मूव करता है, फिर वो स्ट्रक करता है, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लाइक दैट दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। ऐसे स्ट्रक करता रहेगा, मूव करता रहेगा, स्ट्रक करता रहेगा, मूव करता रहेगा, बट बिटवीन टू पार्टिकल्स इट ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। When strike, it move in different direction. This zigzag movement of the particles, कोई भी शो कीजिए आप किसी भी तरह से, that is known as Brownian movement। इसको हम Brownian movement बोलते हैं। And Brownian movement actually after the name of the discoverer, जिसने डिस्कवरी की उसके नेम पे, मिस्टर ब्राउन के नेम पे ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमने ब्राउनियन मूवमेंट के अंदर क्या डेफिनेशन देनी है, इट इज द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इन सॉल्यूशन। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन स्ट्राइक टू द डिफरेंट पार्टिकल्स द डायरेक्शन इज चेंज्ड। दिस फॉर्म अ जिगजैग मूवमेंट दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। Between two particles means if particle do not strike or collide with the other particle, then it always move in straight line। तो वो हमेशा किस में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। बट आफ्टर स्ट्राइकिंग इट टर्न्स इट्स डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बट इट स्टिल कंटिन्यू मूविंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो जब भी मूव करेगा स्ट्रेट मूव करता है, बट जब स्ट्रक कर जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, again it move in straight direction। This zigzag movement of the particle that is known as Brownian movement। And the next is Tyndall effect। What is Tyndall effect? मैंने आपको अभी बताया था कि सपोज किसी रूम में किसी एक होल में से सनलाइट आ रही है तो उसका पाथ विजिबल होता है और वाइड होता जाता है, तो उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट डेंस फॉरेस्ट में देख सकते हैं आप। टिंडल इफेक्ट जो है, आप किसी भी मतलब स्मॉल पार्टिकल जहां पे वो कर रहे हो, आप स्मोक ले लीजिए एक, और स्मोक में से लाइट पास करेंगे तो दैट विल स्कैटर, टिंडल इफेक्ट अपीयर होगा। तो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलाना बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल पार्टिकल्स लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, और लाइट का इस तरह से स्कैटर कर होना बाय कोलोइडल पार्टिकल, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि स्मॉल होल में से रूम के अंदर एंटर कर रही है तो लाइट स्कैटर होती है, दैट इज़ टिंडल इफेक्ट। डेंस फॉरेस्ट में से जब सनलाइट फॉल करती है, जिसको कैनोपी बोलते हैं, पता होगा आपने, एक नीचे लेयर बन गई, बड़े ट्रीज़ के ऊपर लेयर बन गई, वो कैनोपी हो जाती, उसमें से लाइट रे आती हैं, तो दैट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल है। टिंडल इफेक्ट के अंदर किस तरह से लाइट स्कैटर होती है, ये देखिए, ये सपोज ये लाइट, बीम लाइट ट्रू सॉल्यूशन में से पास करेगी तो ये पाथ विजिबल नहीं होगा, लाइट स्कैटर नहीं होगी, बाहर जाके फिर स्कैटर हो जाएगी। ये जो है दैट इज़ नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और लाइट इस तरह से वाइड होती जाए और पाथ जो है विजिबल हो जाए, उसका पाथ बिकम विजिबल, देन इट इज़ नॉन एज टिंडल इफेक्ट। इसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें पाथ जो है लाइट का क्या होता है,
विजिबल होता है, लाइट जो है क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैलती है। तो ये लाइट का स्कैटरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें भी, कोई बात नहीं। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, इनमें क्या डिफरेंस है तीनों का? एक कॉमन एग्जांपल है, देखिए ये दिस इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एक मिनट, बिटवीन ग्रेटर देन है क्या, ये सस्पेंशन है, क्योंकि साइज देखिए ना, साइज जिसमें ग्रेटर है वो सस्पेंशन होगा, और बिटवीन इसमें मीटर और इसमें सेंटीमीटर दोनों अगर हो रही हैं, कोई बात नहीं, बिटवीन 10⁻⁵, तो ये क्या हो गया, कोलॉइड्स। सबसे पहली बात, हम जो है इनको क्लासिफाई करते हैं इनके साइज के बेस पे। तो साइज देख लीजिए आप, इफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, और वी कैन से लेस देन 10⁻⁹ मीटर, or we can say less than 10⁻⁷ meter, then it is true solution. And if size is between 1 nanometer to 100 nanometer, यानी कि 10⁻⁹ मीटर to 10⁻⁷ meter, I am saying meter, then it is colloids. सेंटीमीटर में कहेंगे तो 10⁻⁵ to 10⁻⁷ सेंटीमीटर. If size of solute particle is greater than 10⁻⁵ centimeter, यानी कि greater than 10⁻⁷ meter, then it is suspension. Number 2, solute particle of true solution cannot be seen with naked eyes, even with powerful microscope. We can't see. But size of the colloids also cannot be seen with naked eyes, but can be seen under powerful microscope. Size of the solute particle of suspension can be seen with naked eyes. इसको देख सकते हैं आप. True solution do not settle down on keeping, they are stable. Colloids also do not settle down on keeping, but suspension they settle down on keeping. कि अगर आप उनको छोड़ दें तो नीचे बैठ जाएंगे. ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल नहीं सेटल होंगे. When passed through filter paper, filtered through filter paper, no residue is left in true solution and colloids. दोनों में नहीं रहेगा, मतलब they pass through filter paper, but suspension cannot pass through filter paper. वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं कर सकते बिकॉज साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज वेरी लार्ज. अब लाइट की स्कैटरिंग की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट, कोलोइड्स स्कैटर द लाइट वेरी लिटिल अमाउंट, एंड सस्पेंशन स्कैटर द लाइट टू वेरी लार्ज अमाउंट. ट्रू सॉल्यूशन दैट इज ट्रूली होमोजीनियस, होमोजीनियस होते हैं, क्लियर सॉल्यूशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. बट कोलोइड्स के अंदर दे अपीयर होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस. दिखते तो होमोजीनियस हैं बट होते क्या हैं, हेट्रोजीनियस हैं, और वो क्लियर नहीं होते, ट्रांसलूसेंट टाइप सब सॉल्यूशन होता है. सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस है, दैट मे बी ट्रांसलूसेंट और मे बी ओपेक, क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता. There is no boundaries of separation in true solution. There is also in colloids no boundaries of separation visible. But in colloidal solution
बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आर विजिबल क्लियरली। तो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, उनके अंदर जितनी भी मतलब सोल्यूट जो है वो अलग से दिखता है। एंड आज के लिए इतना ही, हम इसमें इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे।